Good afternoon, student. This is our environmental study lecture, EVS lecture. And yesterday's EVS lecture, we already revised the lesson, that is our environment. And the next part will revise today. Okay, आज हम our environment का next part जो remaining part जो था वो आज revise करेंगे. But before we revise a remaining part, we'll watch one song. Okay, पहले हम एक song देखेंगे, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे our environment का lesson. Let's turn off the water. Yes, 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 I will turn off the water. Good, good, a helpful thing to do. Yay, 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 I like it too. See, monkey turns off the water. 1, 2, 3, he twists the knob, you see. Yes, 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 I'll turn it off right now. We're helping the earth. I like it, wow. Plastic, plastic, let's reuse our plastic. Yes, 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 I will reuse the plastic. Good, good, a helpful thing to do. Yay, 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 I like it too. See, Mousy reuses the plastic. 1, 2, 3, use it again, you see. Yes, 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 I'll reuse the plastic now. We're helping the earth. I like it, wow. Tree, it's time to plant a tree. Yes, 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 we ought to plant a tree. Good, good, a helpful thing to do. Yay, 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 We like it. See, Teddy plants the tree. 1, 2, 3 in the ground, you see. Yes, 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 we'll plant the tree right now. We're helping the earth. We like it, wow. I think you all enjoying this video, this song. And this song is related what? ये song किससे related था? ये song जो था वो हमारे environment से related था. The song is related to our environment and our earth है ना? और क्या दिखाया था ये song में? How we maintain
our environment clean and keep our earth safe. हम कैसे हमारे environment को maintain, clean और safe रखेंगे, ये हमें ये song से, ये वीडियो से समझ में आ गया है ना, कि हमें लाइट्स जो है वो ऑफ करने हैं अगर ज़रूरत नहीं है तो। उसके बाद क्या देखा, ट्रैश मतलब जो भी कचरा हम करते हैं वो हमें डस्टबिन में ही डालना है, यहाँ वहाँ नहीं डालना है। देन डोंट वेस्ट वाटर पानी जो है वो वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद रीयूज़ द प्लास्टिक रीयूज़ करना है, और प्लांट्स द ट्री, है ना। इन दिस वे वी मेंटेन आवर एनवायरनमेंट क्लीन and keep our environment healthy. In this way we keep our environment healthy, clean and beautiful, है ना। इस तरह से हम हमारा environment जो है वो clean रख सकते हैं, healthy रख सकते हैं और beautiful सुंदर भी रख सकते हैं। Now let's move ahead, अभी हम आगे चलते हैं। Firstly we revise the yesterday's thing. We see with हमारा environment कैसे बना है, कौन कौन से चीज़ों से बना है। sea, mountains, tree, animals, various insects, है ना, and birds, soil. These things form our environment. ये चीज़ों से हमारा environment बना है। and we also one of the part of the environment, हम भी ये environment का एक part है। there are two things are surrounding in the environment. दो चीज़ें हमारे environment में हमें दिखाई देती हैं। these are, first one is a living thing and second one is a non living thing. living thing मतलब living thing can eat, living thing can move, living thing wants air or wants oxygen, living thing have a little babies, living thing can grow, है ना। and non living thing doesn't move, they can't eat, they can't grow, they haven't a babies, they can't move here and there, है ना। ये सब चीज़ें हमने लास्ट यस्टरडे देखी है आवर एनवायरनमेंट में। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट टॉपिक, द रिलेशन बिटवीन ऑल थिंग्स इन एनवायरनमेंट। अभी हम एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं उनका एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन है वो देखते हैं, एक दूसरे पे वो कैसे डिपेंड है वो देखते हैं। वाटर एंड एयर आर द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। वाटर और एयर जो है वो एनवायरनमेंट का ही एक हिस्सा है। ऑल लिविंग थिंग नीड देम, और जो सब लिविंग थिंग जो है, जितने भी लिविंग थिंग है वो सबको वाटर की और एयर की ज़रूरत होती है ना। हमें भी है वाटर एयर की ज़रूरत, हमें भी है। वैसे ही बर्ड्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनको भी वाटर की ज़रूरत और एयर की ज़रूरत है। लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड अ फूड, है ना। हमें वाटर, एयर और फूड, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है लिविंग थिंग को। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और हमें हमारा फूड कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है ना। जब खेती होती है, खेती से अनाज उगता है तो हमें फूड मिलता है, तब भी हमें खाना मिलता है ना। तो खेती ये एनवायरनमेंट का ही एक हिस्सा है। तो हमें खाना कहाँ से मिलता है, तो एनवायरनमेंट से मिलता है। Whatever living thing need to survive, they get from their environment. हमें जीने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो सभी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। Birds build nest. They need cotton,
ट्विंग्स एंड थ्रेड टू बिल्ड देम। अभी देखो, हमें तो हमारा घर बनाने के लिए एनवायरनमेंट से जो चीज़ें मिलती हैं उनकी ज़रूरत होती है, वैसे भी बर्ड्स अपना नेस्ट जो है वो खुद बनाते हैं, और वो नेस्ट जो है वो बनाने के लिए उनको जो कॉटन लगता है, थ्रेड्स लगता है ना, वो भी कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से ही मिलता है। दे गेट दिस थिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। उन्हें वो चीज़ें बर्ड्स को भी नेस्ट बनाने के लिए जो भी कॉटन, थ्रेड्स, ट्विंग्स लगते हैं, वो सब चीज़ें उन्हें भी एनवायरनमेंट से मिलती है। नाउ द नेक्स्ट पेज। Human being use so many things from the environment. We get cotton, wool and silk from the environment. We weave cloth from them. ह्यूमन को भी, हमें भी, ह्यूमन मतलब हम लोग, हमें भी बहुत सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? तो एनवायरनमेंट से ही मिलती है। हमें एनवायरनमेंट से कॉटन मिलता है, वुल मिलता है, सिल्क मिलता है ना, और उसी से हम हमारे क्लोथ्स, कपड़े जो है वो बुनते हैं, है ना, कपड़े जो है वो उन्हीं से बुनते हैं। देखो कॉटन का पिक्चर दिया है ना, कॉटन है कि नहीं? वेट हाँ, द कॉटन है ना, दिखाई दे रहा है कॉटन आपको अच्छी तरह से, उसी से कपड़े बनते हैं। देखो है ना, कपड़े बनते हैं। सी शिप है, शिप भी एक एनिमल है, तो वो भी एनवायरनमेंट का पार्ट है। और शिप से हमें क्या मिलता है? वुल मिलता है, और वुल से वी मेक अ स्वेटर्स, है ना। इन दिस वे वी वेव आवर क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन, वुल एंड सिल्क। इसी तरह से हम हमारे कपड़े जो है वो किससे बनाते हैं? कॉटन से, वुल से और सिल्क से हमारे कपड़े जो है, जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, उससे हम हमारे कपड़े बनाते हैं। वी वेव आवर क्लोथ। नेक्स्ट, वी मेड थिंग्स लाइक मैट, बास्केट, पेपर from material in our environment. We build houses using clay and stone and wood. These material too we get from our environment. हम जो हमारे घर में यूज़ करने वाले मैट्स है, बास्केट्स है, पेपर है, वो भी बनाने के लिए एनवायरनमेंट से जो चीज़ें मिलती हैं उनकी ही ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी देखो, और एक चीज़, हम हमारा घर बनाते हैं, वी बिल्ड आवर हाउसेस, है ना, हमारा घर बनाते हैं। क्या क्या यूज़ करते हैं उसमें? क्ले यूज़ करते हैं, स्टोन यूज़ करते हैं, है ना, वुड यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी कहाँ से मिलती है? ये सब चीज़ें भी हमें हमारे एनवायरनमेंट से ही मिलती है। The seeds of some plants are scattered by a winds. कुछ प्लांट्स के सीड्स जो है वो विंड से, हवा से यहाँ वहाँ फैलते हैं। एज अ रिजल्ट सीडलिंग ऑफ दोज प्लांट ग्रू इन अ न्यू प्लेसेस। और इसी तरह वो जो बीज जो है वो इधर उधर ज़मीन में बोए जाते हैं और उससे न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स उगते हैं। दस प्लांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम द एयर। और इस तरह प्लांट्स को भी अगर बढ़ना है तो उन्हें किसकी हेल्प लगती है? एयर की हेल्प लगती है, एनवायरनमेंट की हेल्प लगती है। लिविंग थिंग टेक मैनी थिंग्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग को हमें बर्ड्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से मिलती है। व्हाट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन एनवायरनमेंट? उसका क्या इफेक्ट होता है? एनिमल लाइक वल्चर्स एंड फॉक्सेस ईट अ फ्लेश ऑफ डेड एनिमल। देखो एनिमल में फॉक्स है, ये सब जो एनिमल्स है वो कार्निवोरस एनिमल्स है ना, तो वो डेड एनिमल, जो मरे हुए एनिमल है, उनको खाते हैं। दस दे क्लीन द एनवायरनमेंट वाइल दे सेटिस्फाई देयर हंगर। तो अपनी भूख जो है वो अपनी जो भूख है वो भूख
अपनी जो भूख है वो मिटाने के लिए वो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स जो है, मरे हुए एनिमल्स जो है वो खाते हैं और इस तरह एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं. Remains the dead animal decay. They mix with a soil. Leaves fall off a trees. They too root and get mixed in the soil. This make the soil fertile. Plants get nourishment from the fertile soil. बाकी जो मरे हुए एनिमल्स है, अभी वो तो सब एनिमल, सब जगह के एनिमल्स नहीं खा सकते, तो बाकी जो मरे पड़े हुए एनिमल्स है वो मिट्टी में मिल जाते हैं. ओके. उसी तरह पत्ते जो है, पेड़ से गिरे हुए पत्ते जो है वो भी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और ये डेड एनिमल्स, फॉल ऑफ, लीव्स फॉल ऑफ, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं वो मिट्टी में मिल के मिक्स होके उनसे क्या बनता है, तो फर्टिलाइज़र बनता है. और ये फर्टिलाइजर्ड सॉइल जो है, फर्टिल सॉइल जो है, वो प्लांट्स को बढ़ने के लिए एक अच्छा नरिशमेंट होती है, प्लांट को बढ़ने के लिए अच्छे से हेल्प करती है. Thus, living thing bring about changes in non-living thing too. अभी देखो, do you know a sheep body is covered with a wool, है ना. मैंने पहले ही आपको पिक्चर दिखाया था शिप का, और शिप से हमें क्या मिलता है, वुल मिलता है. तो शिप की ये जो बॉडी रहती है वो कवर्ड रहती है वुल से. द शिप फीड ऑन अ लीव्स ऑन अ स्क्रब्स. As it does so, the seeds of some scrub can be caught in a wool. शिप जो है वो क्या खाती है, पत्ते खाती है. तो वो पत्ते खाने के लिए जब छोटे छोटे बुशेस में जाती है, छोटे छोटे प्लांट्स में जाती है, तो प्लांट्स के जो कुछ भी सीड्स है, फ्रूट्स है छोटे छोटे, वो शिप को चिपक जाते हैं, शिप के वुल को चिपक जाते हैं. ठीक है. When the ship gets somewhere else, the seeds may fall off them. और शिप अगर उधर से निकल के किधर भी अगर चलती जाती है तो वो सीड्स जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाते हैं. Thus the ship help new seedlings of a scrub to grow in a many different place. इस तरह से वो प्लांट्स के सीड्स जो है वो शिप की हेल्प से इधर उधर गिर जाते हैं और वहाँ पर नए प्लांट्स आते हैं. In this way the ship, which is the animal, and scrub, which is the plants, helping each other. इस तरह से शिप और वो स्क्रब, ये दोनों चीज़ें जो है वो प्लांट्स को बढ़ने के लिए हेल्प करती है. अभी ये लेसन में हमने क्या देखा. There are many things in our environment. Some of them are living thing and some are non-living thing. हमारे environment में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ living things है, कुछ non-living things है. Living things can move on their own. Living thing खुद से ही move हो सकते हैं. Living thing need food. Food help them to grow. Living thing को food की ज़रूरत होती है और फूड से ही वो बढ़ते हैं, खाना खाने से ही वो बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं. लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ, है ना. लिविंग थिंग में ये क्षमता होती है कि वो अपनी तरह एक यंग वन बेबीज जो है वो तैयार करें. लिविंग थिंग आर ऑफ टू काइंड्स. लिविंग थिंग के टू टाइप्स है, plants and animals. Living thing get all that they need from their environment. लिविंग थिंग को जो भी ज़रूरतें हैं लिविंग थिंग की, वो एनवायरनमेंट पूरी करता है. लिविंग थिंग ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग टू. ऑल थिंग्स इन द एनवायरनमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर, है ना. लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ये जो एनवायरनमेंट के पार्ट है वो एक दूसरे पे ही निर्भर है. इन दिस वे वी कंप्लीट अवर रिवीजन ऑफ अवर फर्स्ट लेसन, है ना. हमने इस तरह से फर्स्ट लेसन की रिवीजन जो है वो भी कंप्लीट कर ली है. अभी हम एक्सरसाइज जो है वो देखेंगे. ठीक है. लेट्स सी द एक्सरसाइज. एनवायरमेंटल स्टडी अवर एनवायरमेंट. क्वेश्चन फर्स्ट, थिंक एंड राइट. सोचना है और फिर लिखना है. फर्स्ट,
What are the uses of cotton? कॉटन के यूज़ क्या है? आंसर है we make a clothes from cotton. हम हमारे क्लोथ्स जो है वो कॉटन से बनाते हैं. क्वेश्चन 2. What are चप्पल्स मेड फ्रॉम? चप्पल कहाँ किससे बनती है? चप्पल्स मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की जो स्किन है, जो चमड़ी है, उससे चप्पल बनती है. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डज द हाउस लिजार्ड ईट? लिजार्ड जो है वो घर की जो लिजार्ड है वो क्या खाती है? तो क्या खाती है? हाउस लिजार्ड ईट इंसेक्ट खाती है ना. फोर्थ क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ अ थिंग्स इन योर हाउस दैट कैन बी मेड अप फ्रॉम वुड. घर में आप ऐसी चीज़ें बताइए जो वुड से बनी है. क्या क्या? तो घर में जो चेयर्स रहते हैं, वुडन चेयर्स, वो टेबल, कबर्ड, जो वुडन की चीज़ें है ना, वो वुड से बनती है. नेम द एनिमल दैट फीड ऑन माइस. माइस को कौन से एनिमल्स खाते हैं? स्नेक, सांप जो है वो माइस को खाता है, तो स्नेक्स फीड ऑन माइस. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. देखो फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने क्या किया है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके नीचे आपको अंडरलाइन दिखाई देगी, है ना, दिखाई दे रही है. चेंज के नीचे है, क्लोथ्स के नीचे है, फॉल ऑफ के नीचे है. तो वो जो शब्द है वो नहीं दिया जाता और हमें वो शब्द जो है वो भरना पड़ता है, तो उसे कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक. द प्लेस ऑफ अ स्टोन डैश चेंज ओनली इफ समवन पिक इट अप एंड मूव इट. तो उस पे है चेंज. स्टोन का प्लेस तभी चेंज होता है जब कोई उसको उठाता है और दूसरी जगह रखता है. सेकेंड, वी वेव डैश फ्रॉम कॉटन वुल एंड सिल्क. हम कॉटन वुल और सिल्क से क्या बुनते हैं? क्लोथ्स. सो द आंसर इज सेकेंड का क्लोथ्स. वी वेव क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन वुल एंड सिल्क. थर्ड वन, leaves dash trees, they too root and get mixed with the soil. leaves fall off, पत्ते गिरते हैं और वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. नाउ थर्ड वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट से हमें कौन सी चीज़ें मिलती है? आंसर है उसका वी गेट फूड, खाना मिलता है, वाटर, पानी, ऑक्सीजन, मेडिसिन्स, क्लोथ्स फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, है ना. हमें ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट से मिलती है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हेल्प डू प्लांट्स गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट. प्लांट को एनवायरनमेंट से क्या मिलता है, क्या हेल्प मिलती है? तो प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. प्लांट का जो खाना है, मैंने बताया था प्लांट का खाना सन रेज एंड वाटर, ये जो है वो उन्हें एनवायरनमेंट से मिलता है. प्लांट को कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से. तो प्लांट गेट फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. प्लांट को भी उनका फूड जो है वो एनवायरनमेंट से मिलता है. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, सही या गलत. द सीड ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय द विंड्स. कुछ प्लांट्स के सीड्स जो है वो हवा के मदद से यहाँ वहाँ फैलते हैं. ट्रू. सेकेंड है प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग. प्लांट्स आर अ नॉन लिविंग थिंग. नहीं, प्लांट इज अ लिविंग थिंग. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. द प्लांट्स are a living thing. Plants are non-living thing is a false. Okay, and this way we complete our revision of our first lesson. Okay, and also revise the exercise of the first lesson, that is our environment. Now you all are write the questions and answer again. If anyone didn't complete first, पहले अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है ये एक्सरसाइज, सो नाउ वी कंप्लीट द एक्सरसाइज. इफ एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग द लेसन फर्स्ट आस्क मी विद द हेल्प ऑफ ऑडियो रिकॉर्डर, SMS, आइदर कॉल. ओके,
Bye. Have a nice day.